સુરત જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના તરસાડી ખાતે આવેલ વિનાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ કંપનીમાં પગાર અને અન્ય બાબત મુદ્દે કોન્ટ્રાક્ટ કામદારોનો હોબાળો। કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા કામદારોની રજૂઆતને મુદ્દે યોગ્ય ન્યાય આપવાની બાહેધરી આપવામાં આવી। મહુવા તાલુકાના તરસાડી ખાતે આવેલ વિનાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ કંપનીમાં છેલ્લા 4 મહિનાથી કોન્ટ્રાક્ટ પર કામ કરતા કામદારો અને કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે સરકારી ધારાધોરણ મુજબ લઘુત્તમ વેતન, ઓવરટાઈમ, પીએફ, મેડિકલ સુવિધા જેવી અન્ય પ્રાથમિક સુવિધા મુદ્દે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, જે બાબતે કોઈ ઉકેલ નહીં આવતા કામદારોએ ભારત આદિવાસી સેના સામાજિક સંગઠનનો સંપર્ક કરી પોતાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। ગત 15/10/2024ના રોજ કામદારો દ્વારા કામ બંધ કરી કંપની બહાર આવી ગયા હતા। જો કે અધિકારીઓ દ્વારા સમય માંગે હૈયા ધરપત આપતા ફરી કામે લાગ્યા હતા। જો કે પરિસ્થિતિમાં કોઈ સુધાર નહીં આવતા આજ રોજ ભારત આદિવાસી સેના સામાજિક સંગઠનના ગુજરાત પ્રમુખ સહિતના હોદ્દેદારો કામદારો સાથે કંપનીમાં જઈ કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી। સમગ્ર મામલે જઈ કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારી દ્વારા કામદારોની રજૂઆત સાંભળી કોન્ટ્રાક્ટરો ઉપર કડક કાર્યવાહી કરી યોગ્ય ન્યાય આપવાની બાહેધરી આપવામાં આવી હતી। કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે મહુવા પીઆઈ पारधी सहित पुलिस बंदोबस्त खड़की देवामां आव्यो हतो। मारू नाम राकेश चौधरी और भारत आदिवासी संविधान सेना सामाजिक संगठन गुजरात प्रदेश प्रमुख छूँ। आज अमे अहीं सूरत जिला तालुको महुवा तरसाड़ी खाते जे वी लाइन इंडस्ट्री आवेली छे, कंपनी आवेली छे, तो ते जग्याए जे लेबरोना प्रश्नों छे ए प्रश्नोने लईने भेगा थया छे। 15/10/2024 रोज लेबरो बधा बहार निकळी गया हता, कारण के एमनी साथे कंपनीना जे कॉन्ट्रेक्टरो छे कॉन्ट्रेक्टरो द्वारा पूरेपूरो रोज आपवामां नथी आवतो। सरकारी नियम प्रमाणे 476 रुपया रोज मळवो जोईए, ते नहीं मळतो। तो ते दिवसे पण अमे जे कॉन्ट्रेक्टरो छे एमने बोलाव्या हता, पण ते लोको भेगा न थया हता। पछी एवुं जणाववामां आव्युं के शनिवाરના रोज सौ कोई भेगा थईने आ बाबते निराकरण करीशुं। तो आज फरी भेगा थया छे अने कंपनी डिपार्टमेंट छे अने कॉन्ट्रेक्टरो छे अने लेबरो पण तमे मारी पाछळ जोई शको छो। तो एमनी जे मुख्य समस्या छे समस्याओने लईने आज अमे भेगा थया छे। मुख्य समस्याओ कई कई मुख्य समस्यामां एमने जे सरकारी नियम प्रमाणे लघुत्तम वेतन मळवुं जोईए 476 रुपया ते पूरेपूरुं आपवामां नथी आवतुं। एमने ओवरटाइम करावीने ओवरटाइमना पैसा आपवामां नथी आवता। पीएफ मां जे रकम जमा थवी जोईए ते रकम पण नथी जमा थती अने एमना पैसा एमना जे पगार छे एमांथी पैसा कपाय छे, परंतु पूरेपूरी रकम नथी जमा थती अने अमुक जे कामदारो छे एमने तो पीएफ नंबर पण नथी आपवामां आव्या। बीजुं के जे मेडिकल सुविधा मळवी जोईए मेडिकल सुविधा पण आपवामां नथी आवी। तो ए तमाम विविध प्रश्नो हता अने एने लईने आजे आ कंपनी बंध राखवामां आवी छे अने हालमां चर्चा थता आ प्रश्नों निराकरण થાય એવું લાગી રહ્યું છે। કંપનીના અધિકારીને અમે લેખિત રજૂઆત કરી છે, કારણ કે 15/10ના રોજ લેબરોએ અમને મૌખિક રજૂઆત કરી હતી। તો એ તમામ અમે લેખિત રજૂઆત કરી છે અને કંપનીના જે અધિકારીઓ છે એમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે તમે જેટલી પણ અમને લેખિત રજૂઆત કરી છે તો એ તમામ રજૂઆતો પર અમે અમલીકરણ કરીશું અને જેટલા પણ કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા આ જે સ્ટાફ છે જે લેબરો છે એમની સાથે જે મિસબિહેવિયર કરવામાં આવે છે તો મિસબિહેવિયર બાબતે પણ એક્શન લેશું અને જે પગાર નથી ચૂકવવામાં આવતો તો એ તમામ વસ્તુનો અમે ચેક કરીશું અને જેમના વિરુદ્ધ એક્શન લેવા જેવી લાગે તમામ વિરુદ્ધ અમે એક્શન લેશું। એ પ્રકારની વાત અમને કંપનીના અધિકારીઓ જણાવી છે। આગળ જતા આજે અમે રજૂઆત કરી છે અને આ કોઈ આ કંપનીની પહેલી વારની સમસ્યા નથી। આના પહેલા પણ અમે 4 મહિના પહેલા આવ્યા હતા અને ત્યારે પણ અમે આ જે તમામ મુદ્દાઓ છે તમામ મુદ્દાઓ બાબતે કોન્ટ્રાક્ટરોને પગાર બાબતે પણ ચર્ચા કરી હતી। આ જે મુદ્દો છે આ કંપનીમાં વારંવાર સામે આવ્યા કરે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે લેબરો છે એમની સાથે અત્યાચાર થતો જ આવે છે। તો આવનારા સમયમાં જો હજુ પણ આ કોન્ટ્રાક્ટરો નહીં સુધરે અને એમને જે મિનિમમ પગાર મળવો જોઈએ તે નહીં મળે, મેડિકલ સુવિધા નહીં મળે, એમની સાથે અમને એવી પણ માહિતી મળી છે કે કોન્ટ્રાક્ટરો દ્વારા જે સ્ટાફના લોકો છે એમના દ્વારા પણ અભદ્ર ભાષામાં બોલવામાં આવે છે અને જે મહિલાઓ છે ખાસ કરીને મહિલાઓને ગાળો પણ આપવામાં આવે છે। તો હજુ પણ જો આ વસ્તુ નહીં સુધરશે તો આવનારા સમયમાં કંપનીના સ્ટાફ સાથે સાથે અમારા જે સામાજિક આગેવાનો છે જે સંગઠનના લોકો છે જે આસપાસના લોકો છે તમામ સાથે અહીં મોટા પ્રમાણમાં ઘેરાવો કરીશું અને તાત્કાલિક એક્શન લેવામાં આવે અને જો નહીં સુધરે તો પછી અમે લેબર કમિશનર પાસે પણ જઈશું અને આ જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે તે કોન્ટ્રાક્ટરોનું લાયસન્સ જ રદ કરવામાં આવે એ પણ માંગણી કરીશું। मैं जितेंद्र कुमार हूँ। मैं विलाइन कंपनी में ऑपरेशन हेड हूँ। ऑपरेशन मतलब मैन्युफैक्चरिंग हेड। अच्छा, आज जो कंपनी में लेबर लोग ने जो एक हड़ताल जैसे किया है कुछ प्रश्नोत्तरी हुई थी, तो क्या प्रॉब्लम हुआ था?
सर देखो, मैं आपको बताऊं जो हमारी कंपनी का स्टैंड है, हम फ्रॉम डे वन हम जो कंपनी के जो नियम कानून हैं प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेबर लॉ है, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। और ये आज से नहीं है, जब से ये कंपनी लगी है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में भी कंपनियां हैं और हम बहुत लॉ अबाइडिंग कंपनी है। ये जो था, मैं आप अगर मेरे पर्सपेक्टिव से आप जानेंगे तो ये एक कन्फ्यूज़न था लोगों के बीच में, जो आपने भी देखा होगा जब हम उनसे बात कर रहे थे कि ऐसी कोई मांग ही नहीं थी जो कि उन्होंने बेजाय मांगी हो और हमने एग्री ना किया हो। बिकॉज हम लॉ के भी साथ काम कर रहे थे और लॉ के हिसाब से ही हमने किया है। मोस्ट मेनली जो ये लोग वर्कर्स थे जो बाहर, वो कॉन्ट्रैक्ट के बंदे थे। जो हम, चूंकि आप देखो हमारा जो बिजनेस है वो सीजनल बिजनेस है, इसमें कभी काम रहता है कभी काम नहीं रहता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को हायर भी करते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली एक कंफ्यूजन में बोलूंगा उनको, जिसको मैंने आज क्लैरिफाई कर दिया है। कुछ और छोटी छोटी चीजें थी, आप जानते हो घर में अगर 10 लोग होंगे तो कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो भी मैंने क्लियर कर लिया है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आप देखते हो डे टू डे एक्टिविटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं, वो चूंकि यहाँ हमारे पीछे कंपनी में आपने देखा ही होगा जो स्थिति है, अभी एक हमारा फायर का केस हो गया था, तो इसलिए थोड़ा सा स्टाफ भी वीक था, तो उसको भी अभी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कुछ रिक्रूटमेंट्स हमने कर लिए हैं, कुछ इन प्रोसेस है, तो ये जो है जो लैप्सेस है वो भी ठीक हो जाएंगे अभी। और जो लैप्स जो है ये हमारे एंड से नहीं हुआ है, हमने मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है सबके, मतलब बैंक के हम जो डिटेल्स हैं, हमने सारे पूरे पेमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स के आगे जो गैप रहा है वो हम उनके यहां जाके नहीं देख पाए, हमारे ये गलती रह गई कि उन्होंने आगे क्या किया, हमने ये नहीं किया। हालांकि जो कि अगर आप देखो, हम जो बंदे आए यहाँ पे, जो भी बच्चे हमारे साथ काम थे, हमने उसके हिसाब से पूरे पैसे, उनका पीएफ, सारी चीजें उनको दी, उसके सारे सबूत है। हम आपको बैंक की चीजें डिटेल्स भी दिखाना चाहते हैं, और इनफैक्ट आज मैंने उनको बोला भी है कि हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे, बिकॉज कंपनी ने एक कदम भी पीछे नहीं हटे हैं हम किसी भी जगह पे। सर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर खास करके आपका क्या स्टैंड रहेगा अभी? देखो, कॉन्ट्रैक्टर का जो स्टैंड है, मेरा मानना है कि हम एक परिवार की तरह यहाँ काम करते हैं। ठीक है, और अगर परिवार में देखो कई लोग होते हैं, कई बच्चे थोड़े से ये भी होते हैं, हम इनिशियली उनको अभी समझाएंगे कि ये गलत है जो भी है, और प्लस मैं आज जो हूँ यहाँ इसलिए क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा इनको। लेबर का खास करके यही क्वेश्चन है कि हमारे साथ गाली गलौज होता है, मिसबिहेव होता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर, ये जो मिसबिहेवियर है, मैं इसको किसी लेवल पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर आपने देखा होगा, मैंने वहां भी एड्रेस किया है लोगों को, जो भी इस पे अगर ऐसे होगा, अभी देखो पुरानी चीजें, चूंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, और हमको, जब आप हेड ऑफ द फैमिली होते हो तो यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस, कि आप सही, जब डेटा आपके पास हो तभी आप एक्शन लें। तो मैं भी यही बोलना चाहता हूं, मैं एक पॉलिसी अभी बना के ये पूरी नोटिस बोर्ड पर चिपकाऊंगा। अगर किसी भी वर्कर ने या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने, या मैं तो कहूंगा हमारे स्टाफ ने भी ऐसी एक्टिविटी किसी ने की, तो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, ये हम आपको भी आश्वासन देना चाहते हैं। लोगों का ये कहना है कि हमको 400 रुपये कंपनी सीधा देती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बीच में 350 देता है, इसमें आप क्या बोलेंगे? पूरा पैसा कंपनी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को नहीं दिया। सर, अभी तक प्राइमरीली हमें यही समझ में आ रहा है, बिकॉज हमने जो मिनिमम वेजेस हैं और जो स्किल के हिसाब से जो लोग जहां भी प्लेस्ड हैं, हमने उनको पूरे पैसे दिए हैं। इसका पूरा सबूत हमारे पास है, हम आपसे भी साझा कर सकते हैं। अभी बट इन्होंने आगे कहां गैप किया है, ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, जो मैं अभी 1 वीक यही हूं, और इसको इन्वेस्टिगेट करके जिन्होंने भी ये एक्शन किया है, अभी हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। खास करके लेबर लोगों को कंपनी से कोई दिक्कत नहीं है, उनका यही मानना है कि कॉन्ट्रैक्टर ही मिलती है, वो ही बीच में से पैसे यहाँ तक पूरा नहीं पहुंचते। इस बारे में आप क्या करें? मैंने आपको कहा ना, हम कब इसके बिल्कुल भी उनके सपोर्ट में नहीं है, बिकॉज अभी आप कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट ने अभी हमें ये खबर लगी कि ऐसा ऐसा हुआ अभी, इसीलिए हम लोग सारे एक्टिव हो गए हैं। मैं भी आज यहाँ हूँ, इससे पहले भी लोग अधिकारी आके गए यहाँ पे। हमने इनका कमीशन भी बढ़ा दिया है अभी पीछे,
आप सोचो, हम नहीं चाहते कि चाहे कॉन्ट्रैक्टर को नुकसान हो या हमारे कामगार भाई को हो। मैं तो हमेशा से बोलता हूं, देखो मेरे को 28 साल हो गया इसी इंडस्ट्री में काम करते हुए, हमें हमेशा यही ट्रेनिंग मिली है कि हम वी आर लाइक ए फैमिली। और हमारे एमडी साहब की अगर बात आप करो, वो तो बिल्कुल रिजिड है इस मामले में। उन्होंने भी मुझे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जाके बोला है कि किसी भी तरह से हमारे किसी कामगार भाई का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इस चीज को जब वो पिछली बार आए थे, ये 4% से 7% जो भी इनको जो कमीशन हमने बढ़ाया है कि उनका भी भला हो। बिकॉज हमारे साथ ये दुर्घटना, पता नहीं भगवान भी हमारे अगेंस्ट है अभी, कि ये पहले फायर हो गया, बाद में हम अब कंपनी भी 2 महीने बंद हो गई बिकॉज हमारे पास ऑर्डर नहीं था। तो ये करके हम अभी अच्छे दिनों से नहीं गुजर रहे हैं, बट उसके बावजूद हमने इनको 3% ऊपर करके दिया कि चलो तुम्हारा चूंकि उतना रोजगार नहीं बन रहा है भी, तो आप भी कैसे करोगे, 3% आप और रख लो। उसके बावजूद ये जो विश्वासघात हुआ है, इस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो लोग भी हैं उस पे हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારી મહુવા પીઆઈ અને સામાજિક સંગઠનના કાર્યકર્તા અને કામદારો સાથે મળેલી બેઠકમાં કંપનીના ઉચ્ચ અધિકારી જીતેન કુમારે તમામ વેતન મુદ્દે તમામ પુરાવા રજૂ કર્યા હતા અને હાજર કોન્ટ્રાક્ટરોને કામદારો સાથે ગેરવર્તણૂક ન થાય અને કોઈ ફરિયાદ ન આવે તે માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી. હિતેશ પરીખ, જનસાક્ષી ન્યૂઝ, બારડોલી.